Hi, very good morning to all. My dear student, today we are going to discuss your class 12th history, chapter 4, Thinker, Beliefs and Building. Dear student, as you know that in this chapter we discuss the various important paragraph, points, topic and try to understand the religious revolution which happened during 6th century BC to 6th century AD. Thousand-year history, which type of changes that was introduced in whole Indian continent, subcontinent, we studied in this chapter. We will also try to understand that how the first time religious building emerged and who tried to made it. Let us start. So, my dear, today we will try to read, try to understand the topic stupa. Stupa. My dear, before we start stupa, I would like to tell you that ki in my previous class, in my previous video, I taught you about the Buddhist council. I taught you that in the life of the Buddha, there were no preaching, no building architecture, and such type of other religious propagation was implemented in Buddhism. But after death of the Buddha, after the Mahaparinirvana of the Buddha, the followers of the Buddha, they decided to propagate their religion. And my dear, I am also discuss with you that the clear categorization of Buddhism sect, Hinayan and Mahayana, their belief, their faith also, it was discussed by me in your previous class. The Mahayana, it means leisure vehicle. They believe that we have to meditate with the help of some idol architecture, where we sit and try to concentrate, try to meditate with our own self, own God, Buddha. Here, it is very interesting matter that in Hinayan, the Hinayani believe that Buddha is a teacher, but in Mahayana, they believe that Buddha is a God. Buddha is a what? मुक्तिदाता के रूप में है. बुद्ध सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए काम करने वाले महान व्यक्तित्व के धनी हैं. ये हीनयान और महायान में क्लियर बताया गया है. तो स्तूपा के लिए आज स्तूपा में कुछ टॉपिक्स हैं. ऐसे आप देखिए, वाई वर स्तूपा बिल्ट, हाउ वर स्तूपा बिल्ट. ओके, फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड स्तूपा. सेकेंड पॉइंट, why were stupa built? Why were stupa built? How? Third point which is given, how were stupa built? How were stupas built? How were stupas built? And the structure of the stupa. The structure of stupa. The four topic we will try to understand today in this class. First of all, stupa. स्तूपा के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले समझना. आई थिंक इफ यू हैव रिमेंबर माई प्रीवियस क्लास वेयर आई वॉज क्लियरली डिफाइंड दैट द मीनिंग ऑफ स्तूपा एंड फर्स्ट टाइम यूज ऑफ दिस वर्ड स्तूपा. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. स्तूपा दैट इज नॉट अ न्यू वर्ड. Stupa, that is, this word
was not used first time by Buddhist follower or Buddhism sect. Stupa, this word is used in Vedic religion also. In Rigved, stupa it means the flame of fire. Stupa it means the flame of fire. Second thing is that other meaning of stupa, that is mound. मिट्टी का थूहा ढेर को भी स्तूपा कहते थे. इसके अलावा स्तूपा, चूंकि कुछ लोग जब मर जाते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके शव के ऊपर मिट्टी का एक ठूहा खड़ा कर देते थे, इसलिए इसे चैत्य भी कहा गया है. चैत्य भी कहा गया है स्तूपा को. और फिर स्तूपा को क्या कहा है? ट्री, वृक्ष की जो छाया होती है. सपोज दैट इज ट्री. तो ये जो एरिया है दैट इज आल्सो कॉल्ड स्तूपा. इसे भी स्तूपा कहते हैं. सो माय डियर, व्हाट आई एक्सप्लेन द स्तूपा. स्तूपा को मैंने बताया कि द मीनिंग ऑफ स्तूपा इज डिफरेंट इन द डिफरेंट प्लेस. स्तूपा इज नॉट ए न्यू वर्ड. स्तूपा, दैट वर्ड इज आल्सो यूज्ड इन ब्राह्मणिकल रिलीजन. सेम इन Buddhist religion, in Buddhism, it is also accepted, adopted. As I told you, the different name of stupa is also called chaitya. It also called chaitya. Why? Because the remains of the body, they collect one place और वहां पे वो मिट्टी का एक तूआ खड़ा कर देते थे. देख, ये संरचना भी चैत्य कहलाती थी, स्तूप कहलाती थी. आपने गांव में भी देखा होगा. आपके गांव में प्राचीनतम परंपराओं में भी अगर आप देखें, ग्रामीण परंपराओं में देखें, तो आपके आसपास ऐसे संरचनाएं दिखाई देंगी जो मिट्टी के तूए हैं और जिनकी पूजा की जाती है. पूजा उपासना की एक वैदिक परंपरा का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है. स्तूपा का निर्माण कब हुआ? स्तूपा क्यों बना? टॉपिक पे जैसे हमारे हैं, व्हाई वर स्तूपा बिल्ट, हाउ वर स्तूपा बिल्ट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू टेल यू द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट स्तूपा इन बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में स्तूपा के निर्माण की बात मैंने आपसे कहा था कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, after the death of Buddha, after the Mahaparinirvana of the Buddha, the followers of the Buddha decided that we have to make a structure. Even I also told you a story which is given in Mahaparinirvan Sutta. The conversation between Anand, who is the prominent disciple of the Buddha, and Lord Buddha. Lord Buddha and Anand, they talk. Anand, having seen the condition of the last stage of the Buddha, he was weeping. Buddha told them, "Why are you weeping?" Anand replied that, "You are going to leave us. It is very critical and miserable condition for us. Who were guide us? Who were motivate us? Who were preach us in the absence of you?" Lord Buddha smiled and told them, "Don't worry, my dear. You have to what? Be enlightenment. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद से प्रकाशित होना पड़ेगा." I hope you have remember the teaching of the Buddha. The teaching of the Buddha, where I told you that the last teaching of the Buddha, Buddha told that be lamps unto yourself. Be lamps unto yourself
as all of you must work out your own liberation. Be lamps unto yourself. That is the very important. Up deepo bhava. Be lamp unto yourself. अपने को प्रकाशित करिए और अपनी मुक्ति का मार्ग खुद प्रशस्त करिए। जैसा कि मैंने कहा, yourself as all of you must work out your own liberation. तो ये बुद्ध ने आनंद को उपदेश दिया। एट लास्ट आनंद इस बात के लिए एग्री किए। फिर आनंद ने पूछा कि आपकी मृत्यु के पश्चात हम आपका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। बुद्ध फिर उन्हें कहे कि आप हमारा अंतिम संस्कार एक महान सम्राट की तरह और एक महान योगी की तरह करना। इट इज वेरी contradictory sentence which is told by Lord Buddha to Anand. Anand asked them, Bhagavan, Lord, what are you saying? This is the totally contradict word. फिर बुद्ध ने रिप्लाई किया। बुद्ध रिप्लाइड देम, you have to make the structure, स्तूपा structure। कहाँ पे? ग्रैंड, जो 4 ग्रैंड पथ है, राजपथ है, चौराहे हैं, उन जगहों पे आप इस स्तूपों का क्या करें? निर्माण कराएं, धातु अवशेषों को रखें। और यहीं से स्तूप का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में दिखाई देता है। स्तूप महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी जो अस्थि अवशेष थे, धातु अवशेष थे, उन धातु अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। इन 8 भागों में विभाजित करके उस पर स्तूपों का निर्माण करने का काम किया गया। एक भाग अजातशत्रु लेके गए, मगध के सम्राट। इस तरह से कुल 9 भाग। इन 9 भागों पे स्तूपों का निर्माण कालांतर में किया गया। स्तूप शब्द का प्रयोग, स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर या थूहा होता है। चूंकि ये चिता के स्थान पे बनाया जाता है, इसलिए इसका एक नाम चैत्य भी कहा जाता है। चिता के स्थान पे बनाने के कारण इसे चैत्य भी कहते हैं। स्तूप का उल्लेख, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद में इसको फ्लेम ऑफ फायर, आग की उठती हुई ज्वालाएं कहा गया है। इसके अलावा उपनिषदों में इसे वृक्ष की छाया, वृक्ष के वितान को भी स्तूप कहा गया है। मैंने आपसे कहा, वृक्ष के जितने वट वृक्ष को लीजिए, वट वृक्ष के वितान को देखिए, उसकी सराउंडिंग एरिया को देखिए, दैट इज ऑल्सो लुकिंग लाइक सेमी सर्किल। इसे भी स्तूप कहा गया है। बुद्ध के पहले से ही स्तूप का संबंध महापुरुषों के साथ जुड़ गया था। ऐसा लगता है कि अपने मौलिक रूप में स्तूप का संबंध मृतक संस्कार से था। सौदाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा को ही स्तूप का जन्मदायक माना जाता है। स्तूपों का निर्माण जो मरने के पश्चात मिट्टी में दबा करके उसके ऊपर मिट्टी का ढेर बना देते थे, इसे स्तूप कहते थे। अपनी इस परंपरा को ही कालांतर में बौद्ध धर्म में एक्सेप्ट किया गया और फिर स्तूपों का हमको आज रिलीजियस बिल्डिंग आर्किटेक्चर के रूप में क्लियर एविडेंस दिखाई देती है। बौद्धों ने इसे अपने संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अपने प्रमुख शिष्यों की धातु अवशेषों को रखा जाता था। बुद्ध के अलावा भी जो बौद्धिस्ट फॉलोअर्स थे, जो टीचर्स थे, उनके अस्थि अवशेषों को इसमें रखा जाता था। ये एक यूनिक बात थी। जब हम सांची स्तूप के बारे में पढ़ेंगे तो आप क्लियरली इसको जानेंगे कि वहां पे गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष के साथ साथ उनके 2 शिष्य महामौदगल्यायन और सारिपुत्र के भी अस्थि अवशेष रखे गए हैं। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में स्तूपों का कॉन्सेप्ट आया। 4 प्रकार की स्तूपों का कॉन्सेप्ट है। स्तूप
एक शारीरिक स्तूप है, इसमें फिजिकल पार्ट होते हैं या बॉडी पार्ट कह लें, शारीरिक। दूसरा स्तूप होता है पारभौगिक। पारभौगिक, इसमें the things which used by Buddha or other teachers। तीसरा होता है शारीरिक, पारभौगिक, इसके अलावा उद्देशिक। उद्देशिक, ये उद्देशिक क्या है? तो कहता है इनमें वो स्तूप होते थे जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित होते थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं, उनके यात्रा से पवित्र किए हुए स्थान, उनकी स्मृति के रूप में रखी हुई जो चीजें थी, उन चीजों पर स्तूपों का निर्माण किया था। प्लेस, विजिट, रूट, थिंग्स एंड मेमोरेबल। थिंग्स के ऊपर बनाए थे। और चौथे प्रकार का जो स्तूप था वो संकल्पित होता था। व्हाट डू मीन बाय संकल्पित? संकल्पित मीन्स कि किसी के अच्छे काम हो, किसी ने एक मनोकामना रखी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने सारे स्तूपों का निर्माण कराऊंगा। तो इस तरह के संकल्प को लेकर के स्तूपों को बनाने का कंसेप्ट संकल्पित स्तूप में रखा गया। शारीरिक स्तूप, शारीरिक स्तूप उस प्रकार के स्तूप थे इसमें बुद्ध के बॉडी पार्ट, बाल, दांत, नाखून, हड्डियों के अवशेष ये रखे जाते थे। पारभौगिक स्तूप, पारभौगिक स्तूप ऐसे स्तूप थे जो स्तूप किसमें होते थे? पारभौगिक स्तूप ऐसे स्तूप जो पूरी तरीके से, पारभौगिक स्तूप ऐसे स्तूप उन वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते थे जिनका यूज बुद्ध ने अपने जीवन में किया, जैसे उनके भिक्षा पात्र, जैसे उनकी चरण पादुका, जैसे उनके चीवर या वस्त्र, जैसे इस तरह के तमाम सारी चीजें जिनका उपयोग बुद्ध ने अपनी लाइफ में किया। इन चीजों के ऊपर यदि स्तूप बनते थे इसे पारभौगिक स्तूप कहते थे। उद्देशिक स्तूप, जिन रूट का विजिट, जिन जगहों की विजिट बुद्ध किए, जिन वस्तुओं का उन्होंने इस्तेमाल किया जो उनकी स्मृति में वहां रखे गए, इन वस्तुओं के ऊपर उद्देशिक स्तूप बनाए गए। इनमें वो स्तूप आते थे जिसे महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति रूप में निर्मित किया जाता था। ऐसे स्थान बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर आदि हैं जहां पे उद्देशिक स्तूप बनाए गए थे। इसके बाद संकल्पित स्तूप की बात है। संकल्पित ये छोटे आकार के होते थे। इनमें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं के द्वारा स्थापित किए जाते थे। बौद्ध धर्म में इसे बहुत ही पुण्य का काम माना जाता था। मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है माय डियर स्टूडेंट कि द स्तूपा, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्तूपा नाउ ए डे इन एग्जिस्टेंस। फर्स्ट, द शारीरिक और फिजिकल स्तूपा, in which
I mean to say that that type of stupa, the speciality of stupa, there you can easily found the body part or remains part of the Buddha. Bal, dant, nakhun, such type of other things. I mean to say hair, teeth and nail. Second, Barbhaugic stup, it means which things, which goods which is used by Buddha in their life, that thing is also used in स्तूपा. हर्मिका या देवस्थान में उनको रखा गया, उसके ऊपर स्तूप बनाए गए और ये पारभौगिक स्तूप कहलाए. तो उसके बाद उद्देशिक स्तूप की मैंने बात की. उद्देशिक स्तूप ऐसे स्तूप जिन जगहों पे बुद्ध ने विजिट किया, जहां पे उन्होंने उपदेश दिया, ऐसे प्लेसों को, इस ऐसे प्लेसों पे स्तूपों का निर्माण किया. जैसे उद्देशिक स्तूप है कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, ऐसे तमाम सारे प्लेसेस हैं जहां पे इस तरह के स्तूपों का निर्माण हुआ. और संकल्पित स्तूप, ये एक तरीके की मान्यता थी, पुण्य का काम बुद्ध धर्म में माना जाता था. श्रद्धालु अपनी मान्यता के अनुसार स्तूपों का निर्माण यहाँ कराते थे. इस तरह से स्तूपों के 4 प्रकारों की बात हमने की. अब इसके बाद हम आप देखेंगे कि स्तूप किसे कहते हैं. अब आपके बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं. व्हाट इज योर बुक, एक्सप्लेन. ओके, कम टू योर बुक. ओके, लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्तूप. स्तूप को समझते हैं. स्तूप क्या है? अकॉर्डिंग टू योर बुक, व्हाट ही given here, the stupa, we have been the Buddhist ideas and the practices emerged out the process of the dialogue with other traditions, including those of Brahmins, Jain and several other, not all of whose ideas and practices were preserved in the text. Some of these interaction can be seen in the way in which sacred place come to be identified. हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद, तर्क वितर्क की प्रक्रियाओं पे ही निर्भर था, या उन तर्क वितर्क की प्रक्रियाओं से ही वो उभरे. इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार पर ग्रंथ नहीं लिखे गए. जो तर्क थे, जो डिबेट्स थे, जो उनकी फिलॉसफी थी, उसमें हमें उनकी जो लिटरेचर है वो प्राप्त नहीं होते. इस तरह से हम क्या पाते हैं, इस तरह की जो मेल जोल को हम पवित्र स्थलों को उभारने की प्रक्रिया को देखकर समझ सकते हैं. मेरे कहने का सेंस इतना ही है कि यदि हम ध्यान से देखें, if we will minutely observe about that the various religious sects, we will find the various religious sects, their literature is not found still. And that is the very strange matter. How can we know about their history? We have to observe that places, we have to observe that things which was used, which was made by the followers of particular sect or religion. And also we will try to collect those facts which is compiled in the different religious sects book, literature, like discuss and debate. That was the very healthy tradition in the ancient India to understand each other philosophy. The tradition, this tradition and the debate. So, I hope you are getting understand what I want to tell you. मैंने आपसे कहा कि बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो उन तर्कों पर ही निर्भर थी, उन डिबेट और डिस्कस पे ही डिपेंड थी जो उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य कंटेम्प्रेरी रिलीजियस सेक्ट से किया था. अपने लॉजिकल फैक्ट से
अपने लॉजिकल व्यू से जो उन्हें उनके विचारों को उन्होंने काटा था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और उसी से बाद में कालांतर में हमें बौद्ध धर्म के विकास की एक नई पूरी परंपरा दिखाई देती है। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहां खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें होती थी, या ऐसी विस्मयकारी स्थल जहां पे जाने पे मन को शांति और क्या हो, एक अंदर से आत्म सुख की प्राप्ति हो। एक प्राकृतिक स्थल, एक मनोरम स्थल जहां पे आप जाते हैं और लगता है कि वाह, कैसे अच्छी जगह पे आए, कितना शांत है मन, मस्तिष्क, सब कुछ आपको आनंदमयी वातावरण महसूस कराता है। तो ऐसे स्थल को भी लोगों ने पवित्र माना। अनूठी चट्टानें थीं, या कुछ ऐसे जगह जो कुछ वनस्पतियां थीं, इनको लोगों ने पवित्र माना। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिससे कभी कभी चैत्य कहा जाता था, जिससे कभी कभी पूजा की जाती थी। बौद्ध साहित्यों में कई चैत्यों की चर्चा है। इसे बुद्ध के जीवन काल से जोड़कर उन जगहों को वर्णन किया गया, जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, बोध गया। और फिर इन जगहों पे स्तूपों का निर्माण किया गया। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर। Try to understand that what I told you, what I teach you, it is exactly given in your book. So from earlier times, people tended to regard certain place as sacred. These includes sites with special tree or unique rocks, or sites of the awe-inspiring natural beauty. These sites with small shrines attached to them were the sometimes described as Chaitya. Buddhist literature mention several Chaitya. It also described place associated with the Buddha's life, where he was born, Lumbini, where he attained enlightenment, Bodh Gaya, where he gave his first sermon, Sarnath, and where he attained Nibbana, Kushinagar. Gradually, each of these places came to be regarded as sacred. We know about 200 years after the time of the Buddha, Ashoka erected a pillar at Lumbini to mark the fact that he had visited the place. My dear, here one more thing which I want to tell you, what is the meaning of Chaitya. Chaitya may also have been derived from the word Chaitita, meaning the vernal prayer, and by the extension of vernal mound. चैत्य का मतलब क्या होता है, चैत्य का अर्थ क्या होता है, चैत्य का तात्पर्य क्या है। चैत्य का अर्थ हुआ कि शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित कर दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े टीले चैत्य ही कहलाते थे, उनको चैत्य कहते थे। इस प्रकार इन्हीं चैत्य को, इन्हीं धार्मिक स्थलों को स्तूप कहा गया। इसी से कालांतर में स्तूपों का निर्माण हुआ, स्तूपों का विकास हुआ, और ये स्तूप हमारे अस्तित्व में दिखाई दिए। स्तूप आर्किटेक्चर,
दैट इज स्तूपा आर्किटेक्चर। तो हम इसी चीज को फिर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।